মানৰ পক্ষত গৰজি উঠিল আছাদুদ্দিন ওৱেইছি। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিলে আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। এনআৰচিত নাম নথকা হিন্দুক কাৰ অধীনত নাগৰিকত্ব দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নাম নথকা মুছলমানক বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ কাষ চাপিব দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বিজেপি শাসিত সকলো ৰাজ্যত টাৰ্গেট কৰা হৈছে মুছলমানক আৰু মুছলমানৰ বাবেই অনা হৈছে লাভ জেহাদৰ আইন। আৰু এনেদৰে কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। আৰু কি কৈছে আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। অসমৰ মুছলমানৰ পক্ষত আছাদুদ্দিন ওৱেইছি। অসমৰ মুছলমানৰ পক্ষত গৰজি উঠিছে এতিয়া আছাদুদ্দিন ওৱেইছি। এআইএমআইএমৰ নেতা আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ গৰ্জন। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিলে সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। কৈছে এনআৰচিত নাম নথকা হিন্দুক কাৰ অধীনত নাগৰিকত্ব দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে। আৰু নাম নথকা মুছলমানক বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ কাষ চাপিব দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু বিজেপি শাসিত সকলো ৰাজ্যতেই টাৰ্গেট কৰা হৈছে এতিয়া সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ক বা মুছলমানক। আৰু মুছলমানৰ বাবে অনা হৈছে লাভ জেহাদৰ আইন। লাভ জেহাদৰ আইন কেৱল মাত্ৰ মুছলমানৰ বাবে অনা হৈছে বুলিও ডাঙৰ মন্তব্য। উত্তৰাখণ্ডত ইউচিচি বলবৎ কৰি শেষ কৰি দিয়া হৈছে মুছলমানৰ ধৰ্মীয় নীতি। আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ এই ডাঙৰ মন্তব্য ভাৰতক হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ গঢ়াৰ পৰিকল্পনা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ। আৰু আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ গঢ়াৰ বাবে মুছলমানক সহজ টাৰ্গেট কৰি লৈছে এতিয়া চৰকাৰে। হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ গঢ়িবৰ বাবে মুছলমানক টাৰ্গেট কৰি লৈছে বুলি অভিযোগ। অসমৰ মুছলমানৰ পক্ষত থিয় দিছে এতিয়া আছাদুদ্দিন ওৱেইছি। আছাদুদ্দিন ওৱেইছি গৰজি উঠিছে অসমৰ মুছলমানৰ পক্ষত কঠোৰ সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ওৱেইছিৰ। এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। কৈছে যে এনআৰচিত নাম নথকা হিন্দুক কাৰ অধীনত নাগৰিকত্ব দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰে। আৰু লগতে কৈছে নাম নথকা মুছলমানক বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ কাষ চাপিব দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বিদেশী ন্যায়াধিকৰণ অৰ্থাৎ ডিটেনশ্যন কেম্পলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলিও ডাঙৰ মন্তব্য। বিজেপি শাসিত প্ৰায় সকলোবোৰ ৰাজ্যতে টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছে এতিয়া সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ক, বিশেষকৈ মুছলমানসকলক। আৰু মুছলমানৰ বাবে অনা হৈছে লাভ জেহাদৰ আইন। লাভ জেহাদৰ আইন কেৱল মাত্ৰ মুছলমানৰ বাবে অনা হৈছে বুলিও ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ পৰিকল্পনাৰ বাবে এতিয়া মুছলমানৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছে বিজেপি চৰকাৰ। এই দাবী, এই অভিযোগ আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ। ভাৰতক হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ গঢ়াৰ পৰিকল্পনা বিজেপিৰ লক্ষ্য হৈছে বা পৰিকল্পনা হৈছে ভাৰতক হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ কৰা। হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ গঢ়িবৰ বাবেই এতিয়া মুছলমানক সহজ টাৰ্গেট কৰি লৈছে চৰকাৰে বুলি ডাঙৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আৰু অসমৰ 28 গৰাকী মুছলমানক, বিশেষকৈ বৰপেটাৰ 28 গৰাকী নাগৰিকক বিদেশী চিনাক্ত কৰি ডিটেনশ্যন কেম্পলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। আৰু তাৰে পিছৰে পৰা অসম চৰকাৰক লক্ষ্য কৰি লৈছে আক্ৰমণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ। এটাৰ পিছত আনটো মন্তব্য কৰি গৈছে আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। আৰু তাৰ পাছতে কৈছে এনআৰচিত নাম নথকা লোকক, নাম নথকা হিন্দুক কাৰ অধীনত নাগৰিকত্ব দিব বিচৰা হৈছে। হিন্দু লোকক নাগৰিকত্ব দিব বিচৰা হৈছে, কিন্তু নাম নথকা মুছলমানক কিন্তু বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ কাষ চাপিবলৈ দিছে, অৰ্থাৎ ডিটেনশ্যন কেম্পলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। হিন্দুক নাগৰিকত্ব দিব বিচাৰিছে আৰু মুছলমানক নাগৰিকত্ব বৰখাস্ত কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে, ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। আৰু প্ৰায় বিজেপি শাসিত ৰাজ্যবোৰতে এনেধৰণৰ ঘটনা ঘটিছে। মুছলমানৰ বাবে অনা হৈছে লাভ জেহাদৰ ঘটনা, মুছলমানক লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে। উত্তৰাখণ্ডত ইউচিচি বলবৎ কৰি শেষ কৰি দিয়া হৈছে মুছলমানৰ ধৰ্মীয় নীতি। আৰু ভাৰতক হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ গঢ়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে বিজেপি, আৰু তাৰ বাবে এনেদৰে উঠি পৰি লাগিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। মন্তব্য আছে আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে কি কৈছিল, মন্তব্য আগবঢ়াইছো। बीजेपी इस मुल्क को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। तरफे तमाशा ये है कि अगर एक खानदान में 5 लोग हैं तो 4 भारत के नागरिक हैं, 1 भारत का नागरिक नहीं। और आसाम बॉर्डर पुलिस किसी को भी रोड चलते आदमी को उठा सकती है और कहेगी कि तुम बांग्लादेशी हो और तुम साबित करो। आसाम में सुप्रीम कोर्ट के तहत एनआरसी हुआ, एनपीआर हुआ, उसमें कुछ 20 लाख के करीब आवाम के नाम नहीं आए, जिसमें 2 लाख मुसलमान थे। उन 2 लाख मुसलमानों से कहा जा रहा है कि आप फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को जाओ और अपनी भारत की नागरिकता, शहरियत साबित करो। और वो जो 18 लाख जो गैर मुस्लिम है, उनसे हेमंत बिस्व शर्मा आसाम का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम CAA के तहत आपको सिटीजनशिप दे देंगे। और आसाम में हमने देखा आज से चंद दिन पहले, हफ्ता भर पहले 28 के करीब मुसलमानों को
आसाम में एक आसाम बॉर्डर पुलिस है और आसाम बॉर्डर पुलिस किसी को भी रोड चलते आदमी को उठा सकती है और कहेगी कि तुम बांग्लादेशी हो और तुम साबित करो। तो फॉरेनर्स जो शहरियत का कानून है उसका सेक्शन 9 ये कहता है कि इल्ज़ाम अगर मुझ पर लगेगा तो मुझे साबित करना पड़ेगा कि मैं भारत का शहरी हूँ। और उसमें तरफ तमाशा ये है कि अगर एक ख़ानदान में 5 लोग हैं तो 4 भारत के नागरिक हैं, 1 भारत का नागरिक नहीं है। 28 लोगों को ले जाकर ट्राइब्यूनल, अच्छा वो ट्राइब्यूनल ऐसा है वो बिल्कुल आर्बिट्री है। अब 28 लोग अब 2 साल तक मिनिमम जेल में रहेंगे, वहाँ उसमें रहेंगे, उसके बाद अगर बेल होगी नहीं होगी तो निकलेंगे, वरना उससे पहले बेल। तो ये बताने का मकसद ये कि कानून ये, फिर जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर उन्होंने लव जिहाद का कानून बना दिया। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर उन्होंने कह दिया कि हरियाणा में गौ रक्षकों को पैसे दिए जाते, हरियाणा की बीजेपी की सरकार की तरफ से बंदूक के लाइसेंस उनको दिए जाते हैं। इस पस मंजर में आपको वक्फ एक्ट को देखना है। और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून बनाती है और वहाँ पर यह कहा गया कि आप निकाह नहीं कर सकते, स्पेशल मैरिज एक्ट में आप शादी करो। तो निकाह हमारे पास तो शादी निकाह से होती है, गवाह से होती है, महर देने से होती है, मगर उत्तराखंड में कुछ और बना दिया गया। तो इस पस मंजर में हमको ये देखना है कि बीजेपी इस मुल्क को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। बीजेपी सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना बना रही है। बीजेपी इस मुल्क को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। तरफ तमाशा यह है कि अगर एक खानदान में 5 लोग हैं तो 4 भारत के नागरिक हैं, 1 भारत का नागरिक नहीं है। और आसाम बॉर्डर पुलिस किसी को भी रोड चलते आदमी को उठा सकती है और कहेगी कि तुम बांग्लादेशी हो और तुम साबित करो। आसाम में सुप्रीम कोर्ट के तहत एनआरसी हुआ, एनपीआर हुआ, उसमें कुछ 20 लाख के करीब आवाम के नाम नहीं आए, जिसमें 2 लाख मुसलमान थे। उन 2 लाख मुसलमानों से कहा जा रहा है कि आप फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को जाओ और अपनी भारत की नागरिकता, शहरियत साबित करो। और वो जो 18 लाख जो गैर मुस्लिम है उनसे हेमंत बिस्व शर्मा, आसाम का मुख्यमंत्री, कह रहा है कि हम CAA के तहत आपको सिटीजनशिप दे देंगे। और आसाम में हमने देखा आज से चंद दिन पहले, हफ्ता भर पहले 28 के करीब मुसलमानों को, आसाम में एक आसाम बॉर्डर पुलिस है और आसाम बॉर्डर पुलिस किसी को भी रोड चलते आदमी को उठा सकती है और कहेगी कि तुम बांग्लादेशी हो और तुम साबित करो। तो फॉरेनर्स जो शहरियत का कानून है उसका सेक्शन 9 ये कहता है कि इल्ज़ाम अगर मुझ पर लगेगा तो मुझे साबित करना पड़ेगा कि मैं भारत का शहरी हूँ। और उसमें तरफ तमाशा ये है कि अगर एक ख़ानदान में 5 लोग हैं तो 4 भारत के नागरिक हैं, 1 भारत का नागरिक नहीं है। 28 लोगों को ले जाकर ट्राइब्यूनल, अच्छा वो ट्राइब्यूनल ऐसा है वो बिल्कुल आर्बिट्री है। अब 28 लोग अब 2 साल तक मिनिमम जेल में रहेंगे, वहाँ उसमें रहेंगे, उसके बाद अगर बेल होगी नहीं होगी तो निकलेंगे, वरना उससे पहले बेल। तो ये बताने का मकसद ये कि कानून ये, फिर जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर उन्होंने लव जिहाद का कानून बना दिया। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर उन्होंने कह दिया कि हरियाणा में गौ रक्षकों को पैसे दिए जाते, हरियाणा की बीजेपी की सरकार की तरफ से बंदूक के लाइसेंस उनको दिए जाते हैं। इस पस मंजर में आपको वक्फ एक्ट को देखना है। और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून बनाती है और वहाँ पर यह कहा गया कि आप निकाह नहीं कर सकते, स्पेशल मैरिज एक्ट में आप शादी करो। तो निकाह हमारे पास तो शादी निकाह से होती है, गवाह से होती है, महर देने से होती है, मगर उत्तराखंड में कुछ और बना दिया गया। तो इस पस मंजर में हमको ये देखना है कि बीजेपी इस मुल्क को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। बीजेपी सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना बना रही है। बीजेपी